today topic is consumer equilibrium through indifference curve analysis. In the previous chapter, we have already studied consumer equilibrium in case of one commodity goods and in case of two commodity goods. In the chapter number 4, we have studied consumer equilibrium through indifference curve analysis. Now, how indifference curve analysis is different from utility analysis. In the last chapter, we have studied utility analysis, satisfaction level. In the utility analysis chapter, that means we have studied, we can measure the utility in the cardinal number like 1, 2, 3. The IC analysis of the consumer equilibrium discard this assumption. Okay, IC analysis में we cannot take in these assumptions. We cannot measure utility in terms of 1, 2, 3. We can measure utility in case of the ordinal number, that is high or low. IC जो डिफरेंस का वो क्या कह रहा है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हो, आप अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को मोर और लेस यूनिट में बता सकते हो. दैट मीन्स 1, 2, 3 में की बजाय आप बताओगे वी आर मोर सेटिस्फाइड, वी आर लेस सेटिस्फाइड फ्रॉम द गुड्स. Now the next is assumptions of the IC analysis of consumer equilibrium. IC analysis of consumer equilibrium is based on the following assumptions. Now first assumption is money income of the consumer is given and does not change. मनी इनकम क्या है आपकी जो कंज्यूमर गुड्स की है वो कभी भी चेंज नहीं होगी. ये पहले assumption लेके चलना हमने आईसी कर्व में. अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो गया तो हम ऑब्वियस है हम मोर गुड्स को परचेज कर सकते हैं. प्राइस कम होगा प्रोडक्ट का, हम उस गुड को ज़्यादा परचेज करेंगे, हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, ज़्यादा. तो फर्स्ट assumption is money income of the consumer is given and it cannot change. Second assumption is consumer spend his income on such good which can be substituted with each other. कंज्यूमर जो अपना गुड्स को अपना क्या सब्सिट्यूट कर सकता है उन्हीं गुड्स पे अपना क्या है परचेज पैसा खर्च कर रहा है. जैसे एप्पल और ऑरेंज, एप्पल और मैंगोज, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस गुड्स. फ्रूट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. तो इस तरह के गुड्स को हम सब्सिट्यूट गुड्स को लेके चलेंगे हम, जैसे जेल पेन, बॉल पेन. Third assumption is consumer preference or the scale of preference for the good is well defined. कंज्यूमर की प्रेफरेंस पता होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए उसको कौन सी गुड्स इस टाइम पे आपको परचेज करनी है. Fourth is more of the good always give more satisfaction to the consumer. This is called monotonic preference for a good. अगर एक गुड उसके पास ज़्यादा होगी उसको डेफिनेटली उससे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी. और इस हम टर्म को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस. मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हम प्रेफर करते हैं उस गुड्स को, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसको और कंज्यूम करते हैं. नाउ द कंज्यूमर इज रैशनल. रैशनल मीन इंटेलिजेंट वे में काम करेगा. ही शुड बी इंटेलिजेंट. ही ऑलवेज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन. वो हमेशा क्या सोचेगा, उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो, ज़्यादा हो. दीज आर द बेसिक असम्पशन ऑफ आईसी कर्व एनालिसिस. इन असम्पशंस के बिना हमारा आईसी कर्व हम स्टडी नहीं कर सकते. फर्स्ट क्या थी, मनी इनकम इज गिवन एंड इट डज नॉट चेंज. सेकेंड इज स्पेंड हिज इनकम विच ऑन दोज गुड विच आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. थर्ड इज कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर द गुड इज वेल डिफाइंड. ओके, more of the goods always give more satisfaction. Monotonic preference पढ़ा. The consumer is rational consumer. Now the next topic is indifference set and indifference curve. अब जो टेबल की फॉर्म में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज नोन एज ए इंडिफरेंस सेट. अब जो टेबल को नेक्स्ट पिक्चर में आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहे हैं दैट इज नोन एज ए इंडिफरेंस कर्व. अब हम पहले जो टेबल हम स्टडी करें दैट इज नोन एज ए इंडिफरेंस सेट which is showing in this table. Combination is different combination is given. There are 4 combination given, A, B, C and D. In the A combination we have less unit of apples and the more unit of oranges. Ab 1 unit of apple and the 10 units of the oranges we have. Ab B, in the B combination we have more units of apple but less combination of the oranges. अब इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं वो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कि जब हम एक गुड को परचेज करते हैं दूसरे को हम एक ही कम परचेज करते हैं. अगर एप्पल हमने एक ही खरीदा है तो ऑरेंजेस कितने लिए हैं, 10. अब आपने देखा आपके घर में ऑरेंजेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मार्केट के तो आप एप्पल ज़्यादा परचेज करके आ रहे हो. 2 एप्पल परचेज किए तो ऑरेंज आपने क्या किया, कम परचेज किया. ऑरेंज कितने लिए, 7.
अब आपने को एप्पल अच्छा लगा टेस्ट, आपने फिर से एप्पल और परचेज किए, 3 एप्पल परचेज किए और ऑरेंजेस कितने परचेज किए, 5। दैट मीन्स ये सारे कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहे हैं एक गुड को ज़्यादा परचेज कर रहे हो तो दूसरे गुड का क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस। इफ आर परचेजिंग मोर ऑफ वन गुड वी शुड सेक्रीफाइस ऑफ अनदर गुड। एक को ज़्यादा परचेज, दूसरे का सेक्रीफाइस नजर आ रहा है इस टेबल में। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है दोनों कॉम्बिनेशन से क्या मिल रही है, सेम। सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन A, B, C and D is same. Consumer is fully satisfied with the A combination, with the B, with the C and with the D combination. देखो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया, कॉम्बिनेशन A, B, C आर स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर द गुड्स। ईच कॉम्बिनेशन ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैंने बोला ना अभी आपको। नेक्स्ट, एज देयर इज नो डिफरेंस अमंग कॉम्बिनेशन द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। कंज्यूमर अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज कर सकता है। अब इसमें नीचे एक डेफिनेशन दी गई है इंडिफरेंस सेट की। इंडिफरेंस सेट इज ए set of those combination of two goods which offer the consumer the same level of satisfaction. In difference curve में हम किसकी बात कर रहे हैं, same level of satisfaction की, so that consumer is indifferent across all the combination different set. Okay. Diagrammatical presentation हम किसकी बात करें, difference curve की। अब apples are given on OX। हम स्टूडेंट्स जो आप गलती करते हो, आप डायग्राम पेपर में पूरा ठीक बना देते हो, आप फिर कहते हो टीचर ने मार्क्स क्यों काट लिए। ध्यान से सुनो, आपने पिछला वर्क भी जो मुझे सेंड किया उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चे डायग्राम ठीक बना रहे हैं लेकिन OX और OY पे मेंशन करना भूल जाते हैं कि हमने OX पे क्या मेंशन करना है, OY पे क्या है। डायग्राम बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन OX को मेंशन ही नहीं किया। क्या चीज़ शो कर रही है OX, आपका प्राइस शो कर रही है, आपका डिमांड शो कर रही है। तो आपने ये पेपर में एग्जाम्स में आपके नंबर ना कटे, आपने ये चीज़ों को माइंड में रखना है कि देयर शुड बी, तो जो यूनिट आपने शो करना OX पे उसको OX पे शो करो, OY पे भी आपका क्या है, जिसमें जैसे इसमें एप्पल और ऑरेंज है तो आपको शो करना लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखोगे टेबल ठीक बना होगा फिर भी मार्क्स कट जाएंगे। अब ये जो कर्व दिखा रहे हैं दैट इज इन डिफरेंस कर्व। मैंने बताया ना जो कॉम्बिनेशन हमारे पास गिवन है, टेबल गिवन है, उसको हम सेट बोलते हैं, लेकिन टेबल से जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो क्या बन जाता है, डिफरेंस कर्व बन जाएगा। अभी हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। एप्पल्स आर टेकन इन OX एक्सिस एंड on the OY axis we are taking the oranges. In the first combination we have taking 1 and 10. Apple is 1 unit and the orange is 10. कर्व बन गया, डॉट लगा के करोगे। 2 and 7, okay, again 2 and 7. Third 3 and 5, apple is 3 and the 5 of orange is 4 and 4. Okay, now अब इन पॉइंट्स को जो आपने डॉट लगाए हैं उनको क्या करोगे, पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे, उनको एक लाइन के थ्रू ड्रॉ करोगे। तो जो लाइन आप बनाओगे वो आप देखोगे इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। दैट मीन्स जैसे जैसे एक यूनिट को क्या कर रहे हो आप इंक्रीज कर रहे हो, दूसरों का क्या कर रहे हो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसी वजह से ये क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। Now what is in difference curve is diagrammatic presentation of one good. It shows different combination of two commodities. Okay, different combination का दिखाते हैं at that में but giving same level of satisfaction. लेकिन satisfaction क्या मिलेगी हमें, same. Okay, I hope you understand this topic properly. Note down in your notebook also. Now what are the features as well properties of indifference curve? Today we have studied only one property. Indifference curve slopes downward. अब अभी हमने जो पिछला डायग्राम किया इसमें भी आपने देखा इट स्लॉप्स डाउनवर्ड, इसमें भी यही दिखा रहे हैं एप्पल ऑरेंज, वही सेम डायग्राम दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फाइंड आउट कैसे किया, इसमें एक फार्मूला होता है इसको दिखाने के लिए, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। y में कितना चेंज आया, आप 5 से कहाँ आ गए 3 यूनिट पे, चेंज कितना हो गया 2 यूनिट्स का। अब यहाँ पे क्या चला गया 2 से 3 यूनिट पे चले गए, मैंने एरोज के से आपको शो किया हुआ है एरो दिखा के। तो यहाँ पे आपने कितना कॉम्बिनेशन इंक्रीज किया 1, यानी कि जिसको सेक्रीफाइस कर रहे हो वो चीज़ ऊपर आएगी, जिसका गेन कर रहे हो वो चीज़ क्या आएगी, नीचे आएगी। सेक्रीफाइस अपॉन गेन। अब 2/1 इसके आगे माइनस लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम सेक्रीफाइस करते हैं। अब इसमें दैट इज द स्लोप ऑफ आईसी कर्व। ये क्या है बेटा, आपका किसका फार्मूला आया, ये स्लोप ऑफ आईसी कर्व इक्वल टू चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। Okay, this is the slopes of IC curve and this is the first property of IC curve. IC curves always slopes downward. Okay,
Thank you student, that's for today.